evening, all of you. Yes. So in yesterday's session, we have seen that how to select the type of support plan and what are the benefits with all the support plans, right? So can I open technical ticket or technical case with the basic support plan? Put yes or no. Can I open technical case support for the basic support plan? No. So can I have all the security, all the trusted advisor checks for the basic support plan? Can I have all the trusted advisor checks for the basic support plan? No. We only have core security checks, and cannot open the technical support. For the developer support, what is the pricing? Minimum. For developer support, what's the minimum pricing? Very good. How much? 29. For the for the business के लिए कितना? For enterprise on ramp, for the enterprise, very good, very good. So in which type of support plan we got 30 minutes response time? Just write down in a short also. Short में भी लिखे तो चलता है. In which type of support plan we can have response time within 30 minutes? Enterprise or enterprise on ramp? It will be enterprise on ramp. So in enterprise, within how much time we can get the support? 15. Very good. 15. 15 minutes. Within 15 minutes, you will be answered. In a business support plan, what will be the response time? Business support में कितना time में response आता है? Within 1 hour. Correct. Developer में कितना time लेता है minimum? Support request के लिए developer. For the developer support, minimum duration is 12 hours. Minimum duration is 12 hours. So in which type of support plan we got the technical account manager? TAM किस में होता है? Technical account manager. It will be in the enterprise. Enterprise में होता है वो. ठीक है? What are the IAM identities? What are the different types of IAM identities? Yes, कल हमने देखा है. Very good. What are the IAM identities? User, group, and roles are called as IAM identities. What are the different types of access we have? Access कौन कौन से type के access हमने कल देखे थे? Basically, how many types हैं? कितने types के हैं? Access. Number of access types. AWS को अगर access करना है तो कितने different types of access हैं हमारे पास? Very good. 2. What are those 2? What are those 2? Okay. Okay. These are the users, right? Okay, these are the users, but I am just asking about the access types. जो access करते हैं ना हम लोग via AWS मैनेजमेंट कंसोल एक होता है और एक होता है CLI एक्सेस. ये दो टाइप के एक्सेस है. वो तो यूजर्स हो गए सारे, राइट? सो एक्सेस टाइप कौन कौन से हैं हमारे? एक है मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस CLI. दो टाइप के. एक यूजर इंटरफेस जिसमें कि GUI होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट कंसोल, और दूसरा क्या होता है? CLI, जो कि वाया CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं. ठीक है? दीज टू आर द टाइप्स. अंडर द मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस GUI के जो मेथड है ये इंटरफेयर करने की AWS के साथ. सो इन दिस मेथड वी हैव रूट यूजर एंड IAM यूजर. करेक्ट? वी हैव रूट यूजर एंड IAM यूजर. अभी जो रूट यूजर होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप?
अगर चाहिए रूट यूज़र है तो विल इट हैव, यस नेम रहना चाहिए, राइट? वो एक लॉगिन करने के बाद राइट साइड में नेम दिखना चाहिए। बट व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स दैट यू हैव फॉर द रूट यूज़र? रूट यूज़र के लिए क्या क्या क्रेडेंशियल लगते हैं हमको? नो, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगता है, ठीक है। यूज़र नेम नहीं लगता है उस केस में, ईमेल आईडी होना चाहिए। तो जो हमने लॉग अकाउंट जो क्रिएट किया था तो उसमें जब ईमेल लिखा था तो वही ईमेल चाहिए इधर, ठीक है। सो इट विल बी द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। फॉर द आईएम यूजर यू रिक्वायर्ड हाउ मेनी क्रेडेंशियल टाइप? कितने टाइप के क्रेडेंशियल लगता है, क्या क्या चीज़ें लगती है क्रेडेंशियल के अंदर? वी रिक्वायर्ड 3, राइट? तीन चीज़ें लगती है, कौन कौन सी लगती है तीन चीज़ें? सबसे पहले, वेरी गुड, अकाउंट आईडी और अकाउंट एलियास, यूज़र नेम लगता है और पासवर्ड लगता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें लगती हैं। इफ़ यू हैव यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैन यू एबल टू लॉग इन टू आई एम यूज़र? सिर्फ आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, आप लॉग इन कर सकते हो क्या आई एम यूज़र में? नहीं कर सकते, राइट? तो आप AWS मैनेजमेंट कंसोल को वाया आई एम यूज़र लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। यू ऑल्सो नीड द अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी इज अ 12 डिजिट यूनिक नंबर dedicated to your own account. So that all things that we discussed in the previous session. So let's have a look here. So screen is visible, everyone. So let's today jump over to the IAM mostly. So अभी हम लोग AWS console को log in करते हैं. So what you need to type here, AWS management console. जैसे आप टाइप करोगे तो ये है पहला लिंक, लॉग बैक इन बोलना है आपको। आफ्टर क्लिकिंग हियर इट विल आस्क यू एज अ IAM यूज़र, ठीक है। क्या बोलता है देखो, साइन इन एज IAM यूज़र। Yesterday we created one user for one of the account that I have created. So एक यूज़र हमने बनाया था, है ना। So मैं अभी ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पे है क्या ये। यूज़र का डिटेल कहीं पे रखे थे, नहीं है शायद, डिलीट कर दिया मैंने। ओके, नो इशू। ओके, CSV भी डाउनलोड किया था, गुड। ये वाला। सो कल हमने एक CSV भी डाउनलोड किया था। ये यूज़र हमने क्रिएट करके ये ऐसे मिल जाता है हमको। सो एडमिनिस्ट्रेटर ये है और हमको साइन इन लिंक मिला है, साइन इन URL। जैसे आप इसको साइन इन URL को कॉपी करते हो, आई विल जस्ट पेस्ट इट इन अ ब्राउज़र। देखो जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, एट दैट टाइम द सेम पेज विल ओपन, बट इट हैज़ दिस अकाउंट आईडी ऑलरेडी entered बिकॉज वो लिंक में ये प्रोवाइडेड था। तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी इज ऑलरेडी रिटर्न। तो जब भी आप यूज़र को दोगे ना तो उसको अकाउंट आईडी ये वो नहीं देना है, उसको क्या देना है, ये फाइल देनी है। तो इसमें ये URL होता है, वो ये URL को कॉपी कर लेता है और उसके ब्राउज़र में पुट करता है। जैसे ब्राउज़र में पुट करता है, एंटर मारता है तो ये पेज ओपन होता है। अभी उसको क्या डालना है यहाँ पे, अभी ये जो आपने शेयर किया है यूज़र आईडी पासवर्ड, ये डालना है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड चेंज किया था क्या नहीं पता नहीं, शायद चेंज किया था हमने, ठीक है। नो आई डोंट रिमेम्बर इट, फिर भी देखते हैं। नहीं, ये लगा के देखते हैं, चेंज नहीं किया होगा तो ये रहेगा। नो, इट इज नॉट वर्किंग। सो जस्ट यू कैन फॉरगॉट द पासवर्ड 123 था क्या? नहीं, आई विल जस्ट लॉग इन विद रूट यूज़र अगेन। मेरे पास है रूट यूज़र के क्रेडेंशियल, आई विल लॉग इन विद दैट। सो अभी मैंने रूट यूज़र से लॉग इन किया है बिकॉज मेरे को याद नहीं था क्या हमने सेट किया था बाद में। So I goes to IAM service. IAM is one of the service in AWS.
विच मैनेजेस ऑल द आइडेंटिटीज यूजर्स एवरीथिंग। सो यहाँ पे एक यूज़र हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, 23 आवर्स को हमने बनाया था, मैंने इसका पासवर्ड भूल गया है मेरा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज ना क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है। अभी हम लोग परमिशंस की तरफ नहीं जाते, जस्ट यूज़र क्रिएशन और उसको क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो सब। अभी मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था देखिए आपने, व्हाट वाज माय प्रॉब्लम, आई एम अनेबल टू लॉग इन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। यस, सो व्हाट वाज माय प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज आई एम अनेबल टू लॉग इन विथ एडमिनिस्ट्रेटर सिंस आई फॉरगॉट माय पासवर्ड। मैंने पासवर्ड भूल गया था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे को लॉग इन नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है। सो यू कम टू मी एंड यू आस्क मी टू रीसेट माय पासवर्ड। तो वो कैसा होता है देखेंगे। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ डिलीट कर देंगे पहले तो, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेवर एवर यूज विच यूज़र, कौन सा यूज़र नहीं यूज़ करना है तुमको डेली एक्टिविटीज़ के लिए, रूट यूज़र नहीं यूज़ करना है। सो I just logged in with a root user. So what I will do, I will just log out of this user. Before that, I need to create at least one IAM user. ठीक है, मुझे एक IAM user create करना पड़ेगा. Now you know the procedure. Go to the users, click on the create user here. यहाँ पे नाम देना है आपको. So मैं अभी admin user नाम देता हूँ, सिर्फ admin बोल के नाम देता हूँ. So provide user access to management console, because ये जो UI है इसके थ्रू मेरे को लॉग इन करना है. So I will just choose this particular option to have a management console access. फिर उसके बाद हमको यूज़र किस में क्रिएट करना है, आइडेंटिटी सेंटर में करना है क्या, नहीं करना है, हमको आई एम कंसोल में यूज़र क्रिएट करना है। सो आई विल बी सेलेक्टिंग द सेकंड ऑप्शन। देन कंसोल पासवर्ड चाहिए, किस टाइप का कंसोल पासवर्ड चाहिए। कंसोल पासवर्ड का टाइप हमारे पास दो है, कौन कौन से, एक तो होता है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जो कि AWS जनरेट करके देगा, और दूसरा होता है कस्टम पासवर्ड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ आई विल जस्ट सेलेक्ट अ कस्टम पासवर्ड एंड आई विल चूज वन पासवर्ड जो पता है, मैं लूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो सिंपल पासवर्ड मैंने रखा है अभी। अभी मुझे रीसेट नहीं करना है, लास्ट टाइम हमने रीसेट के लिए दिया था ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट साइन इन पे रीसेट करने के लिए मैंने बोला था, बट अभी मैं ये सिलेक्शन नहीं रखूंगा। सो व्हाट विल हैपन, आई हैव टू लॉग इन विद दिस सेम पासवर्ड, ठीक है। मुझे वो पूछेगा नहीं, लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने जब भी लॉग इन किया, आफ्टर जस्ट लॉग इन पेज, द न्यू पेज हैज पॉपअप विंडो एक ओपन हुआ था, उसमें क्या था, हमको पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन था, बट अभी नहीं आएगा, बिकॉज आई आई नॉट chosen to reset password at next sign in, so this will not work for this case, तो मैं इसको नहीं लेता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी परमिशंस मुझे क्या देनी है, मुझे फुल परमिशंस देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक AWS मैनेज्ड पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना है। सो ये हो गया, नीचे आना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, जस्ट आफ्टर दिस क्रिएट यूजर। जैसे यूजर क्रिएट होता है, तो अगर थर्ड आपका यूजर कोई और है, तो उसको आपको सेंड करना है, तो आपको ये डाउनलोड CSV करके आपको देना होता है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, सिंपल है यूजर क्रिएशन, सबको पता चल गया अभी। सो रिटर्न टू यूजर लिस्ट बोल दो। तो यहाँ पे एक ये डिस्क्लेमर देता है कि कंटिन्यू विदाउट व्यूइंग और डाउनलोडिंग, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया ना देखा पासवर्ड, और मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये बोलता है एक बार कि आप एक बार इसको डाउनलोड तो कर लो, या फिर एक बार देख तो लो कि पासवर्ड है क्या, है ना। सो आई विल जस्ट कंटिन्यू, बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या पासवर्ड रखा है, ठीक है। सो आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी द अकाउंट ID फर्स्ट हियर एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है, यहाँ पे है, ऊपर दिख रहा है। नाउ सी, आई विल जस्ट लॉग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट यूजर से मैं लॉग आउट कर लूंगा। आफ्टर दिस आई विल अगेन लॉग इन। नाउ टेल मी गाइज, इफ आई डोंट हैव द साइन इन लिंक एंड URL, सो इफ आई वांट टू यूज द IAM यूजर, मुझे क्या देना चाहिए पहले सबसे, द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू प्रोवाइड इज व्हाट, अकाउंट ID या फिर अकाउंट एलियास देना पड़ता है। एलियास क्या होता है आज हम देखेंगे। अकाउंट ID जो 12 डिजिट नंबर होता है ना, वो मुझे यहाँ पे पुट करना है। सो मैंने यहाँ पे 12 डिजिट नंबर यहाँ पे लेके रखा है पहले ही। सो आई विल जस्ट कॉपी दैट 12 डिजिट नंबर, सो आई विल पेस्ट इट हियर। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ऐसे मतलब फिल करके आ जाता है अकाउंट ID। ये नहीं होता है आपके केस में, ये ऑटो फिल हो रहा है मेरा, बट आपके केस में ये ऑटो फिल नहीं होगा। सो IAM यूजर नेम क्या है मेरा, IAM यूजर नेम एडमिन करके IAM यूजर मैंने अभी जस्ट बनाया, और पासवर्ड मैंने रख दिया है मेरा, जो मैं अभी मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई विल जस्ट साइन इन, स्टिल फेलिंग, नाउ इट्स वर्किंग। सो दिस IAM यूजर इज नाउ लॉग्ड इन। जैसे आप ऊपर देखोगे, तो पहले केस में हम एक अकाउंट का नाम आ रहा था सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, गुरुदाकर करके एक नाम था खाली यहाँ पे, नॉट अ नंबर। तो अभी केस में क्या हो रहा है देखो, एडमिन @ दिस 12 डिजिट अकाउंट ID दिख रहा है, ठीक है।
So this admin is a user at the rate this account ID. So this admin is what type of user, guys? Admin is what type of user here? It is IAM user. It is IAM user. It is not the root user. Root user का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ एक नाम होता है जो कि अकाउंट का नाम होता है. It will not be like this at the rate or something like that. ठीक है. So what we will do now? We will go to the IAM console. So what difficulty you faced here? What difficulty you faced here? While logging in, you need to remember this long 12-digit number, correct? This number you need to remember always whenever you are going to log into AWS console. So you need to remember this 12-digit number, correct? But in order to overcome that problem, what you can do, you can just put the alias for that. आप एलियास रख सकते हो. मतलब ये जो 12 डिजिट का नंबर है इसको आप रिप्लेस करके एक एलियास रख सकते हो जो कि इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, ये नंबर आपको देने की जरूरत नहीं. फिर नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ वो एलियास ही यूज करना होता है. सो इन दैट केस हाउ टू क्रिएट अ एलियास? तो alias is something which can replace your account number with some valid name. तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है आपको. दिस इज द आई एम डैशबोर्ड. ठीक है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है साइन इन यूआरएल और आई एम यूजर फॉर दिस अकाउंट. ये आपका साइन इन यूआरएल है. तो मैं किसी को भी दूंगा तो ये जैसे वो पुट करेगा तो उसके जो भी लॉगिन पेज है वो दिख जाएगा और ये नंबर भी उसके इसमें एंटर हो जाएगा. बट व्हाट इफ यू आर लॉगिंग इन फ्रॉम रिमोट लोकेशन जहाँ की आपके पास ये अकाउंट आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे नंबर याद रखना इज समवॉट डिफिकल्ट ना. 12 डिजिट नंबर याद रखना डिफिकल्ट चीज़ है. सो व्हाट वी आर डूइंग, यू आर जस्ट कीपिंग एलियास फॉर दिस नंबर. इसका रिप्लेसमेंट में एक एलियास बना के रख रहे हो. सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर द एलियास, नॉट द नंबर. नो नो, यू कैनॉट रिप्लेस इट बाय अ स्मॉल नंबर. इट विल बी जस्ट अ नंबर. ठीक है, ये जो है ना ये तो अकाउंट आईडी है. ये तो ठीक है, ये तो फिक्स होता है अकाउंट आईडी, राइट? सो अकाउंट आईडी है, ये 12 डिजिट नंबर है, ये तो यूनिक है जैसे आधार कार्ड है आपका. that will be unique. But you need, if you are creating the alias, that will be like you can create the alias for this. Okay. तभी हम लोग अकाउंट एलियास बनाएंगे. यहाँ पे क्रिएट, जो नाम देना है दे दो. सो जो भी देना है आपको, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो. सो व्हाट आई विल डू, सिंस इट्स Gurdharkar, so I will just put the name of this account owner Gurdharkar. So I will just create an alias for this. So now see, my sign in URL has become something that I can remember, right? Gurdharkar. So what happens, even if I don't remember the number here, account ID, अगर जो मुझे अकाउंट आईडी पता भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, तब भी मैं इजीली लॉग इन कर सकता हूँ. कैसे बताता हूँ मैं. ऐसा मैं साइन आउट मार दूंगा, अभी लॉग इन करूंगा. हाँ, तो यहाँ पे अभी अकाउंट आईडी के जगह पे क्या डालना है आपको? गुरदाकर. और आई एम यूज़र क्या है हमारा? एडमिन. और पासवर्ड क्या है जो मैंने पासवर्ड रखा है? दैट्स. नाउ आई एम एबल टू लॉग इन हियर विदाउट एनी अकाउंट आईडी. सो अकाउंट आईडी को याद रखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडमिन एट द रेट गुरदाकर. देख रहे हो? सो दिस इज जस्ट लाइक नंबर नहीं है, अभी सिर्फ नेम है. सो इज दैट मीन कि आप अकाउंट आईडी से नहीं लॉग इन कर सकते हो? जो मैंने अभी इससे लॉग इन कर दिया. तो इफ समवन हैज दिस यूआरएल, दिस ओल्डर यूआरएल, कैन दे एबल टू लॉग इन नाउ? क्यों, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ना मेरे गुरदा का नाम से. यस, स्टिल दे कैन एबल टू लॉग इन. बैक एंड में तो ये नाम का कन्वर्जन नंबर में ही है, वो जो भी है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, जस्ट तुम्हारा काम आसान करने के लिए वो. सो यू कैन लॉग इन विथ बोथ नंबर as well as account ID as well as the alias. So that's why I told you while discussing the credential, I always told you that account ID और account alias, so ये दोनों से भी आप लॉग इन कर सकते हो. यहाँ पे और है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अकाउंट आईडी है या फिर एलियास है, ऐसा नहीं, दोनों भी है अंदर. सो दोनों में से किसी से भी आप लॉग इन कर सकते हो. सो दिस यू कैन यूटिलाइज हियर. नाउ इफ आई एम एबल टू लॉग इन, तो चलो लॉग इन करके बता देता हूँ फिर से, क्यों तो अभी मैंने एलियास बना लिया है इसका. सो आई जस्ट कॉपी द
account number or account ID, and I will paste it here. The name is, username is admin, पासवर्ड मैंने डाल दिया. नाउ स्टिल आई एम एबल टू लॉग इन हियर. सो मैंने अभी अकाउंट आईडी से लॉग इन किया है, देख रहे हो, एडमिन एट द रेट. बाकी सब चीज़ सेम रहेंगी, सिर्फ लॉग इन का मेथड चेंज हो गया, बस दैट्स इट. आई विल नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज you are able to remember the IAM like aliases rather than keeping 12 digit account ID. So अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल alias यूज करेंगे. So I logged in here again. Now see, if I am unable to log in to my IAM console, so we have different methods to reset the password. अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन यूजर्स के क्या क्या फंक्शनैलिटीज है ना वो देखेंगे. अभी मैंने एक यूजर बनाया है यहाँ पे, ठीक है. एडमिन यूजर पे चले जाना. व्हाट इज द फर्स्ट टैब हियर. देखो यहाँ पे तो पहले तो समरी है. समरी में आप देख सकते हो कि ARN है. ARN इज अ यूनिक नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रिसोर्स इन AWS. तो ARN क्या होता है, व्हाट इज ARN. ARN इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच resource in AWS. Very good. It is a unique identifier. Good. ARN is, so AWS को आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक रिसोर्स को एक अपना अलग से आईडी देना होता है, so that they can identify it, right? ARN is Amazon resource name. So it is different, or you can say unique, for every resource. Every resource मतलब not even in your account. तो ये पूरे AWS में जितने भी अकाउंट्स है सभी के लिए हर एक रिसोर्स अलग से होता है ये, ठीक है. सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी रिसोर्स इन एवरी अकाउंट. तो ये कभी भी सेम नहीं होता है रिसोर्स. सो ये जो है ये बहुत बड़ा बड़ा चीज़ होता है, मतलब ARN सबका डिफरेंट रखना. तो इसने कॉम्बिनेशन बनाया है इसमें, ठीक है. ARN कैसे बनता है वो हम लोग अभी देखते हैं. अभी अभी इसमें नहीं जाते हम लोग. जस्ट यहाँ पे देख लो, ARN होता है, उसके बाद कोलन होता है. AWS मतलब क्या, कि हमारा AWS है, इसके लिए AWS दिया है यहाँ पे. अब AWS में भी पार्टीशनिंग है तो हम बाद में देखते हैं इसको. उसके बाद क्या है, IAM. व्हाट इज IAM. IAM इज वन ऑफ द सर्विस इन AWS. तो इस तरीके से इसने सेपरेट किया है. और उसके बाद एक गैप दिया है उसने, वो रीजन का पार्ट होता है वो छोड़ दिया है इसने यहाँ पे. और उसके बाद क्या है, देखो ये अकाउंट आईडी है. तो अकाउंट आईडी इज यूनिक फॉर एवरी अकाउंट. सो ये पहला तो सेम रहेगा सबका यहाँ तक, बट ये जो अकाउंट आईडी रहेगा वो हर एक का डिफरेंट होगा, करेक्ट. सो दैट्स वाई दिस बिकम अ डिफरेंट फॉर और यूनिक फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट. अब इसके बाद क्या होता है, यूजर होता है स्लैश करके एडमिन. मतलब क्या हो गया, इस अकाउंट में ये IAM सर्विस है और उसका ये यूजर है जिसका नाम है एडमिन, ठीक है. आर यू एबल टू रीड दिस ARN नाउ. तो ये किसके रिलेटेड है, ये एक यूजर है जो कि एडमिन यूजर है, तो उसका ये एक आइडेंटिफिकेशन है, फिर ARN है. तो जब हम पॉलिसी सीखेंगे ना तो उस टाइम पे ARN वगैरह आएगा, तो अभी तो उतना कुछ डीपली नहीं देखना है. जस्ट ये ARN है इतना पता चल गया ना, बस. नेक्स्ट, क्रिएटेड मतलब ये यूजर कब क्रिएट हो गए. सो क्रिएटेड डेट देखो यहाँ पे, January 10, 2024, ये जो अभी जो डेट है और ये टाइमिंग पे क्रिएट हो गया है. UTC+530 मतलब IST टाइम जोन बता रहा है. नाउ द कंसोल एक्सेस. अभी जो हमने कंसोल एक्सेस जो अभी लिया है यहाँ पे, सो दिस कंसोल एक्सेस इज द एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंसोल. सो ये एनेबल्ड है, कंसोल एक्सेस एनेबल्ड है. बट एक और आगे उसने लिया है कि विदाउट MFA बोला है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ विदाउट MFA. एक पर्टिकुलर MFA ऑप्शन होता है, तो वो इसमें एनेबल नहीं किया अभी तक मैंने. तो हम लोग आज वो भी कर लेंगे. सो दिस इज एनेबल्ड, कंसोल एक्सेस दिया है हमने, बट यहाँ पे MFA एनेबल नहीं किया. MFA इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब एक डबल से वो एक कोड आता है तो वो हमको डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो अभी तक हमने नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एनेबल्ड विदाउट MFA. सो डू वी हैव कंसोल एक्सेस. अभी समझ में आ रहा है कंसोल एक्सेस मीन्स व्हाट. कंसोल एक्सेस मीन्स मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस और GUI एक्सेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस. तो ये हमने कंसोल एक्सेस को दिया है, बट यहाँ पे MFA एनेबल्ड नहीं है. नेक्स्ट है लास्ट कंसोल साइन इन. मतलब इसने लास्ट कब साइन इन किया था इस कंसोल में. तो यहाँ पे दिख रहा है टुडे.
आज मैंने किया था, कितने बजे किया था, सब चीज़ बता रहा है, 12 मिनट्स हो गए। कंसोल पासवर्ड जब चेंज किया ना उसका भी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है पूरे हर एक चीज़, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो लास्ट कंसोल साइन इन कब हुआ है? टुडे, मतलब आज हुआ है। नेक्स्ट इज द एक्सेस की। ये जो एक्सेस की होता है ना, ये सेकंड टाइप का लॉगिन मेथड है, जो हमने कल देखा था ना, कि हमारे पास दो टाइप के लॉगिन मेथड है, एक है जीयूआई मेथड है, दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस मेथड है। तो ये जो सीएलआई वाला मेथड है ना, तो उसमें हमको कीज जनरेट करने पड़ती है। तो ये इसके लिए होता है, ये अभी तक हमने किया नहीं है, अगर किया होता तो यहाँ पे भी आपको की दिखती। ठीक है, अभी समरी में कुछ इशू है आपको? एवरीवन इज क्लियर विद समरी? एआरएन, उसके डिटेल्स आते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद कब क्रिएट हुआ है, कंसोल एक्सेस है क्या, तो यस है, और उसमें एमएफए एनेबल्ड है क्या, नहीं है, इसलिए वो विदाउट एमएफए बोल रहा है। फिर लास्ट कंसोल साइन इन कब किया था? आज ही किया था। एक्सेस की क्रिएट है, यस क्रिएट नहीं है अभी तक, इसलिए इसने क्या बोला, क्रिएट एक्सेस की आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन अभी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट? अभी नीचे आते हैं, परमिशंस टैब है पहला। तो परमिशन पॉलिसीज मतलब क्या, कि ये यूजर है, एडमिन नाम का एक यूजर तुमने सिर्फ बनाया है, बट इसको कुछ परमिशंस हमने दी है, तभी तो ये जाके काम कर पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसको कुछ परमिशंस मिला, अभी आपको कंपनी में जॉब लग गए, या फिर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, दोनों केस में अगर आपको कुछ कंपनी की परमिशन ही नहीं होंगी, आपको कुछ अथॉरिटी नहीं होंगी, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, सिर्फ बैठ के रहोगे, करेक्ट? अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी या परमिशंस देगा कोई कि ये करना है, तभी आप कर पाओगे ना। सो दिस इज कॉल्ड एज परमिशंस। सो आपको परमिशंस होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर एडमिन यूजर को परमिशन होनी चाहिए कि अकाउंट में क्या करे क्या नहीं करे ये सब। तो अभी हमने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मतलब क्या? ही कैन डू एनीथिंग इन द एडब्ल्यूएस अकाउंट, बट इट हैज समवॉट लेस प्रिविलेजेस देन रूट यूजर। इसको रूट यूजर से कम प्रिविलेज होते हैं, बट ये सब कर सकता है। एडमिन यूजर इज अ, यू कैन से, सुपर यूजर। अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाके देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे अलो परमिशन, देखो कैसी दिया है इसने, अलो एनी एक्शन ऑन एनी रिसोर्स। मैंने अभी बोला ना, रिसोर्स होता है कि यूजर है रिसोर्स, और भी बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, तो कुछ भी रिसोर्स पे कुछ भी काम कर सकता है। ये अलो है, मतलब क्या, उसको परमिशन दी है कि भाई तू कर एक्शंस, क्या, कुछ भी कर, जो करना है कर ले, किस पे, किस पे भी। देर इज नो लिमिटेशन फॉर रिसोर्स, नो लिमिटेशन फॉर एक्शंस, एंड दैट इज अलाउड। सो दिस इज वाइड परमिशंस, सुपर परमिशन। सो दैट इज कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो ये हो गया हमारा परमिशन का टैब पहला। अगर मुझे ऐड करनी है परमिशंस, तो यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो परमिशन का है ना, हमारा पूरा एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, तो अभी इसको नहीं देखना है हमको, बिकॉज इसमें और टाइम जाएगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा फालतू का। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ आईएम के कितने ऑप्शंस है ना, वो सारे देख लेंगे। अभी ये हो गया हमारा परमिशंस। नीचे आएंगे तो परमिशन बाउंड्री बोल के एक है, बाउंड्री परमिशंस। तो ये भी हमारा परमिशन का टॉपिक जब रहेगा, तो उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। दैट्स इट। ये परमिशन समझ में आ गया अभी? व्हाट इज परमिशंस? परमिशंस आर द authorities or the users, or you can say that it is the policies that user can do or the actions that user can perform, that is called as the permissions. Now next is the groups. ठीक है, अब ये ग्रुप्स क्या होता है? सपोज आपके कंपनी में 10-12 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो आप सबका परमिशंस ऐसे सेपरेटली मैनेज करोगे, दैट इज नॉट द गुड वे। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ ग्रुप एंड यू आर जस्ट एडिंग नंबर ऑफ डिफरेंट यूजर्स टू दैट ग्रुप। तो फिर क्या होता है, जो ग्रुप पे आप परमिशन अप्लाई करते हो ना, तो वो सबको लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, अभी हमने वो टेलीग्राम पे चैनल क्यों बनाया? टू शेयर द वीडियोस, करेक्ट? इफ आई हैव नॉट मेड दैट channel on a telegram, and if I goes to each and every person and send the videos to each and every person, so it will be time consuming for me, करेक्ट? मैं क्या करता हूँ अभी, सिर्फ वीडियो जो है तो वो क्या करता हूँ, टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर करता हूँ। सो एवरी वन विल गेट दैट वीडियो, yes or no? So each user or each person will get the video. How? Because it is a group. तो मैं ग्रुप पे डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ, तो एवरी वन विल हैव दैट परमिशन टू एक्सेस दैट वीडियो। बट अगर मुझे इंडिविजुअल सेंड करना है, तो मुझे 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, सबको मेरे को इंडिविजुअली सेंड करना पड़ता वीडियो। तो 15 टाइम्स आई नीड टू शेयर द वीडियो। सो ग्रुप का काम वही होता है। अगर आप ग्रुप बनाते हो, तो मैनेजेबिलिटी बहुत ईजी होती है। कुछ कंपनीज में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी 20-25 होती है,
तो उतने लोगों को मैनेज करना, अगर किसी ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन थोड़ा कम करने हैं, अपने को ये परमिशन ऐड करनी है, या फिर उसको थोड़ी ये परमिशन कम करनी है, या फिर कुछ कंपनी का रूल आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटर को हमको यस3 की परमिशन ही नहीं देनी है कि डाउनलोड की, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 15 लोगों के परमिशन आपको कम करने पड़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो 15 लोगों को यस3 की परमिशन निकालनी पड़ेगी। So in that case, group plays very important role. So what you are doing, you can create a group and you allocate the permissions at a group level. तो आप ग्रुप लेवल पे परमिशन मैनेज करते हो। तो क्या होता है, उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे ना, तो सबको सेम परमिशन एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, समझ आ गया ग्रुप का क्या काम है। बट ये यूजर को हमने किसी ग्रुप में डाला ही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि दिस यूजर डज नॉट बिलोंग टू एनी ग्रुप्स बिकॉज दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप। तो ये अभी किसी ग्रुप का मेंबर है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। हम लोग अभी ग्रुप बना के भी चेक करेंगे। फिर आगे है टैग्स। टैग्स इन AWS आर नथिंग बट अ मेटा डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर रिसोर्स। तो अगर आपको लिखना है कि ये एडमिन है, तो आपको और कुछ डिटेल्स देने हैं, तो टैग लिख सकते हो आप कि ऐड न्यू टैग बोलना है, नेम देना है। नेम हमने दिया कि एडमिन है, बट सपोज एडमिन उसामा, सपोज मेरा ही है, तो एडमिन उसामा है इसका। अगर और आपको देना है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज अ क्लाउड। फिर और आपको देना है तो प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ये पर्टिकुलर यूज़र। सपोज ये यूज़र काम कर रहा है वेब डेवलपमेंट पे, वेब डेवलपमेंट पे। तो क्या होता है, जब भी आप टैग देखते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस यूज़र के रिलेटेड। कभी कभार ऐसा होता है ना, अरे यूज़र किसने बनाया, किस लिए बनाया, कौन है ये यूज़र। तो जब आप ये टैग्स में जाते हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के पता चलता है, अच्छा ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़र बनाया था, ये क्लाउड में काम करता था और इसका ये नाम था, ऐसे इस तरीके से। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन होने के लिए बहुत ईजी होता है, आइडेंटिफिकेशन। सो टैग्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट ऑफ टैग्स, टैग्स क्यों लगते हैं। ठीक है, आप जब कोई डीमार्ट में या फिर कोई बड़े मॉल में जाते हो, तब वहाँ पे हर एक चीज़ को टैग लगाया होता है। क्यों लगते टैग? बिकॉज टैग हैज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस टैग पे। तो लोग क्या करते हैं, उस टैग को पढ़ के समझ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना उसका प्राइस है, क्या उसके फीचर्स है, वो सब उस पर लिखा हुआ होता है टैग पे। ठीक है, नाउ आई थिंक एवरी वन इज क्लियर विद द टैग। नाउ द नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। ये जो होता है ना पार्ट, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ये यूजर का जो लॉग इन और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उसको सिक्योरली रखता है, सिक्योरिटी रखता है उसकी। तो अभी इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आप जब जाते हो, तब आपको यहाँ पे देखो कंसोल साइन इन दिख रहा है। दिस इज GUI, दैट मीन्स दिस इज द मैनेजमेंट कंसोल लॉग इन। सो ये कंसोल साइन इन जिसको बोल सकते हो आप। नीचे आने के बाद आपको MFA दिख रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। फिर उसके नीचे आने के बाद आपको दिखता है एक्सेस कीज। फिर उसके नीचे आने के बाद SSH पब्लिक कीज, HTTPS ग्रिड क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स फॉर अमेजोन की स्पेसेस, X.509 साइनिंग सर्टिफिकेट्स। तो अभी ये पूरे चीजें देखने की जरूरत नहीं, आपको मोस्टली क्या देखना है, कंसोल साइन इन मतलब GUI एक्सेस, यानी कि मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। यहाँ पे लिखा भी है देखो, मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। नेक्स्ट MFA और एक्सेस कीज, तीन चीजें हमको अभी देखनी है। सो फर्स्ट वन, कंसोल साइन इन मतलब क्या। जब आप कंसोल में साइन इन कर रहे हो, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले दिख रहा है कंसोल साइन इन लिंक। ये देखो यही लिंक थी ना हमने जो यूज की थी। सिर्फ यहाँ पे गुरुद्वारा करके जगह पे पहले क्या था, यहाँ पे 12 डिजिट अकाउंट ID था, बट अभी यहाँ पे हमने चेंज किया। कहाँ से चेंज किया हमने, एलियास बना लिया। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके हमने ऐड एलियास करके कर दिया। सो कैन आई चेंज द एलियास, इफ आई डोंट वांट दिस, आई नीड टू चेंज इट। सो कैन आई चेंज इट, मैं एलियास बदल सकता हूँ क्या, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। डैशबोर्ड पे आ गया मैं, एडिट का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, एडिट कर लो। इसके जगह पे मुझे सपोज अभी राजेंद्र लिखना है। ठीक है, सेव चेंजेस, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अभी किसी ने लिया है इसलिए है राजेंद्र 1 लिखता हूँ। यस, इट्स वर्किंग। तो राजेंद्र 1 है। नाउ अभी यूजर्स पे चले जाओ, एडमिन यूजर पे चलने हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गया।
राजेंद्र वन करके आ गया। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं अभी लॉग आउट करके मार के नया लॉग इन करूंगा, तो तब मैं गुरदार करके जो नाम था उससे मैं लॉग इन नहीं कर सकूंगा। ठीक है। सो इफ आई लॉग आउट एंड लॉग बैक इन, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले गुरदार कर से देखते होता है क्या। एडमिन, now it's not able to log in here. Why? Because the alias is different now. हमने क्या लिखा है, वन। नाउ आई एम एबल टू लॉग इन। सो एलियास जो भी होता है उसी से आप लॉग इन कर सकते हो, या फिर अकाउंट आईडी से। सो आई जस्ट चेंज माई एलियास अगेन। तो ये एलियास आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसको, कुछ दिक्कत नहीं है। यूजर्स में जाना है, एडमिन में जाना है, फिर से सिक्योरिटी क्रेडेंशियल चेक करना है आपको। अब यहाँ पे देखो, ये कंसोल साइन इन लिंक समझ में आ गई क्या होती है। नेक्स्ट इज द कंसोल पासवर्ड। तो कंसोल पासवर्ड जो है, ये 23 मिनट्स ago क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। ठीक है। तो ये कब चेंज हुआ था ना, वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है टाइम के साथ, और उसका टाइम जोन, मतलब 23 मिनट्स पहले इसको हमने चेंज किया था। बट अभी यूजर ने आपके पास आ गया, उसको बोला, यूजर बोलता है आपको कि मेरा पासवर्ड रीसेट करके दो, मेरा पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, आपका यूजर कौन सा है, एडमिन यूजर है, ठीक है, एडमिन यूजर लोगे, इसमें क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आओगे। आपको ये जानना जरूरी है कि वो उसको किस में दिक्कत आ रही है, कंसोल साइन इन करने में दिक्कत आ रही है, या फिर एक्सेस कीज नहीं हो रही है, काम कर रही है। दोनों का देखना है आपको। अगर से कंसोल साइन इन में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब कि जीयूआई एक्सेस में, तो आपको पासवर्ड होता है वहाँ पे, तो पासवर्ड को रीसेट करना होता है। तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द मैनेज। अब यहाँ पे देखो मैनेज में क्या क्या है, तो आपको इस पर्टिकुलर एडमिन यूजर का कंसोल एक्सेस अगर डिसेबल भी करना है, तो यहाँ पे भी आप डिसेबल पे क्लिक कर सकते हो। मतलब ये यूजर क्या कर सकता, फिर बाद में ये यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा, एडमिन यूजर से ये लॉग इन नहीं कर सकता फिर। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट लॉग आउट हियर। तो मैं लॉग इन करता हूँ रूट यूज़र से। मैंने एक दूसरे विंडो में, दूसरे ब्राउज़र में ही ओपन किया है, बिकॉज सेम विंडो में, सेम ब्राउज़र में नहीं हो सकता। सो हियर मेरा रूट यूज़र लॉगिन करना है, तो आई एम में नहीं जाना पड़ता, हमको रूट यूज़र लेना पड़ता है। सो हियर इट इज़ नाउ। सो आई जस्ट लॉग्ड इन विद द रूट यूज़र हियर। जस्ट मैं अभी हम क्या करेंगे, रूट यूज़र से लॉगिन किया है मैंने, और दूसरे विंडो में मेरा क्या है, ये आई एम यूज़र है। ठीक है, ये मेरा आई एम यूज़र है। सो अभी हम क्या करेंगे, मैनेज कंसोल एक्सेस बोलेंगे, इसको डिसेबल। अभी मैं काम इससे नहीं करूंगा, मैं अभी रूट यूजर से करूंगा, बिकॉज मेरे को इसका इफेक्ट देखना है कि ये जो एडमिन यूजर है ना, तो इसको क्या क्या इफेक्ट होते हैं ना, मैं वो बताऊंगा आपको यहाँ से। सो मैंने अभी मेरे रूट यूजर से काम कर रहा हूँ, मैं रूट यूजर से मैं आई एम सर्विस यूज कर रहा हूँ। आई एम सर्विस में मैंने अभी लॉग इन किया है, यहाँ पे यूजर्स पे जाता हूँ, एडमिन पे जाता हूँ, सो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अब इसका मैं मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस डिसेबल कर देता हूँ, अप्लाई। जैसे मैंने मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस का डिसेबल कर दिया, सो कैन दिस यूजर बी एबल टू लॉग इन टू द मैनेजमेंट कंसोल, यस और नो। ये यूजर का मैंने अकाउंट का लॉगिन बंद कर दिया है, सो कैन ही एबल टू लॉग इन टू द मैनेजमेंट कंसोल। सो आंसर इज नो। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। सो इट इज वर्किंग। इवन आई गो टू अनदर सर्विस लाइक EC2, मैं कुछ दूसरा सर्विस ओपन कर रहा हूँ, नाउ से इट्स वर्किंग। यस। सो हमने क्या किया, उसका यूजर का लॉगिन बंद किया है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो लॉगिन होता है ना, वो बंद किया है। उसकी परमिशंस ने रिमूव किए हमने, उसके जो परमिशंस थे ना वो रिमूव नहीं किए। इसने तो एक बार लॉगिन करके बैठा है अभी अंदर, अब ये जब लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेगा, तो उसको लॉगिन होना चाहिए क्या फिर। अब ये लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ से, फिर से लॉगिन करता हूँ, तो इसने लॉगिन होना चाहिए क्या। सो आंसर इज नो, बिकॉज आई हैव डिसेबल्ड हिज लॉगिन। तो मैंने लॉगिन डिसेबल किया है। तो मैं फिर से अभी क्या करता हूँ, क्या था अपना, राजेंद्र वन करके था, और एडमिन यूजर है मेरा, और यहाँ पे पासवर्ड।
देखो क्या बोलता है, ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज आई डिसेबल्ड हिज एक्सेस। तो जैसे मैं इसको एनेबल कंसोल एक्सेस बोलता हूँ, यहाँ से एनेबल करता हूँ, तो मुझे एक पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो कस्टम पासवर्ड लेता हूँ मैं, जो मेरा पासवर्ड था वही रखेंगे, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। दैट्स इट। अभी मैंने पासवर्ड रिसेट करके दिया है इसको। अभी मतलब सॉरी, मैंने कंसोल एक्सेस एनेबल किया है। अभी जस्ट मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ इससे। नो आई एम एबल टू लॉग इन हियर। देख रहे हो, मैं भी लॉग इन कर पा रहा हूँ। दैट एडमिन यूजर कैन एबल टू लॉग इन नाउ। सो व्हाई? बिकॉज द मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस हैज बीन enabled नाउ। तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, एनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, डिसेबल करना बहुत ईजी है, डिसेबल कर दो, अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो चेंज हो गया है स्टेटस भी समरी में। समरी में लिख के आ रहा है कि ये कंसोल एक्सेस डिसेबल्ड है। इसको एनेबल करना है तो सिंपल है, एनेबल पे क्लिक करना है, एनेबल करना है यहाँ से। और यहाँ पे एक कस्टम पासवर्ड जो आपको रखना है वो रख सकते हो, या फिर ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी ले सकते हो। बट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड CSV करके आपको शेयर करना है, जिसको भी देना है उसको। ठीक है। नाउ इफ दिस यूजर, दैट एडमिन यूजर, देखो, सॉरी, सो एडमिन यूजर दिस एडमिन यूजर हैज फॉरगॉट हिज पासवर्ड। साइन आउट कर लिया मैंने अभी, बट इसको पासवर्ड ही याद नहीं रहा अभी। सो ही हैज टू रीसेट इट्स पासवर्ड। दो मेथड है, ठीक है। ये एक तो आपके पास आएगा कि मेरा पासवर्ड रीसेट करके दो, ये क्यों, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। या दूसरा क्या होगा कि वो खुद से भी पासवर्ड रीसेट कर सकता है। सो जस्ट मैं इधर भी लिखता हूँ यहाँ पे, यस ही कैन डिसेबल हिमसेल्फ। बट वो कैसा है ना कि क्यों करेगा खुद को ही डिसेबल हो, राइट? बट वो कर सकता है। देखो एडमिन से मैंने लॉग इन अभी कर लिया सपोज, सो ही कैन डिसेबल हिमसेल्फ, यस, बिकॉज ही हैज ऑल द परमिशंस ना। बिकॉज ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है ना, तो इसको फुल परमिशंस होती है। देखो अभी मैं IAM में आता हूँ, IAM सर्विस में आता हूँ, यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर लो। ये एडमिन यूजर है, इस पे चले जाना, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाना है, और यहाँ पे देखो मैनेज कंसोल एक्सेस, इसको डिसेबल कर दो, हो गया। इसने खुद ही को डिसेबल कर लिया। ये कर सकते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू द सेल्फ। मतलब ये किसी का भी कुछ भी कर सकता है, राइट? तो ये खुद से भी एनेबल भी कर सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई कैन एनेबल अगेन। फिर से मैंने एनेबल कर लिया। ठीक, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। दीज आर ऑल सिक्योरिटी क्रेडेंशियल थिंग्स। बट अभी क्या हो गया कि ये यूजर ने क्या किया, इसका जो लॉगिन पासवर्ड था ना उसको भूल गया, इसने रीसेट करना है अभी। अभी इन दिस सिनेरियो व्हाट ही कैन डू, सो मैंने अभी यूजर नेम तो पता है मुझे, बट पासवर्ड मैं भूल गया। तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो अकाउंट ओनर रिटर्न्स टू द मेन यूजर, IAM यूजर्स ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीसेट योर पासवर्ड। सो क्या बोलता है, फॉर हेल्प कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर दैट प्रोवाइडेड यू द यूजर नेम। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो कि अगर आपको ये पासवर्ड रीसेट करना है, तो आपको किसको कांटेक्ट करना होगा, यू नीड टू कांटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर रूट यूजर होता है तो आप खुद से कर सकते हो, बट IAM यूजर हैज नो अथॉरिटी टू रीसेट हिज, मतलब ये खुद से फॉरगॉट पासवर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, रीसेट कर सकता है लॉगिन करने के बाद, बट फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन इसमें नहीं आता है इसके केस में। गॉट माई पॉइंट? सो IAM यूजर के लिए उसको क्या करना होता है, ही हैज टू रीच टू एडमिनिस्ट्रेटर और वॉट एवर इज मैनेजिंग द एक्सेस। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरा पासवर्ड रीसेट, इसका पासवर्ड जो भी है, इसका यूजर जो भी है, इसको मैं क्या करूँगा, रीसेट करके दे दूंगा सिक्योरिटी में जा करके। मैनेज कंसोल एक्सेस, अब इसको डिसेबल करना है क्या तुमको? यूजर आपको क्या बोल रहा है कि उसका पासवर्ड जो है तो भूल गया उसने, तो कीप एग्जिस्टिंग नहीं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑटो जनरेट करके अप्लाई करके उसको शेयर करना है, या फिर आपको कस्टम रखना है तो कस्टम भी रख सकते हो। बट नॉर्मली किसी को देना होता है तो ऑटो जनरेटेड करके आप यहाँ पे क्या करते हो, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड करते हो, और फिर वो आपको अप्लाई करना होता है। तो क्या होता है, जैसे वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड की शीट मिलती है उसको, देखो अप्लाई जैसे करता हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड CSV करनी होती है। जैसे मैं फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो वेर इट इज, इसको क्लोज कर लेते हैं। नाउ सी, दिस इज द एडमिन यूजर, इसका ये पासवर्ड है। जब भी मैं इधर अभी लॉग इन करूंगा इससे,
अभी मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे हम इसको, नहीं इधर तो है ही। जस्ट आई विल ओपन विद अ लिंक। ठीक है, यहाँ पे एडमिन है, यूजर नेम तो सेम ही रहेगा। सो माई पासवर्ड इज दिस, सो आई विल जस्ट पुट डाउन माई पासवर्ड एंड साइन इन हियर। जैसे मैं साइन इन करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट साइन इन नहीं हो रहा है, अब ये कंपलसरी मुझे यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या होता है ना कि मैंने तुमको पासवर्ड शेयर किया है, तो मेरे पास तो पासवर्ड है ही ना ये। सो आई कैन ऑल्सो डू एनीथिंग दैट आई कैन वॉन्ट विथ योर यूजर। सो ये ऑप्शन होता है कि कभी भी आपको ये रीसेट वाला थिंग देना ही पड़ता है अगर आप किसी अदर यूजर्स के लिए पासवर्ड बना रहे हो तो मैंने यहाँ पे पुराना पासवर्ड लिख लिया, मेरा नया पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी। कंफर्म बोलना है, मैं लॉग इन हो पाऊंगा फिर। नाउ आई कैन एबल टू लॉग इन। तो आपने पासवर्ड रीसेट करके दे दिया यूजर का, उसका इश्यू आ रहा था, उसको यूजर का पासवर्ड नहीं पता था, आपने उसको रीसेट करके दे दिया। कैसा दे दिया आपने रीसेट करके? यू जस्ट गो टू हिज यूजर नेम, वहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में मैनेज कंसोल एक्सेस पे आप जाके ऑटो जनरेट पासवर्ड कर लिया, और यहाँ पे ये चेक करना नहीं भूलना है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको पासवर्ड रीसेट करने का उसको ऑप्शन देना ही है। अदरवाइज क्या होगा कि आप खाली ऑटो जनरेट करके यहाँ पे अप्लाई करके डाउनलोड करके दोगे, तो वो जो पासवर्ड है वो तो खुद से चेंज नहीं करते बैठेगा वो, हो ना। उसको परमिशन है या नहीं वो भी नहीं पता है, बट वो खुद से नहीं करेगा। तो ऑटो जनरेट रखना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड का ही देना है उसको, ठीक है। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसमें कुछ डाउट्स है कंसोल साइन इन में? इज दैट ओके? अब देखो अपडेटेड 2 मिनट से आपको आ रहा है यहाँ पे, टाइम ड्यूरेशन भी। नाउ अभी तो हमने ये दो चीज़ें देख ली कि पासवर्ड कैसे रीसेट करके देते हैं या खुद का पासवर्ड कैसे बनाते हैं, ये दो चीज़। नो व्हाट हैपन्स इफ इफ आई एम एडमिन, अभी मेरा ये रूट यूज़र है, ठीक है, ये कोई भी ले लो, रूट यूज़र है, मैंने अभी रूट यूज़र मेरे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। परमिशंस में देखो, ये जो एडमिन यूज़र है ना, तो उसको दो परमिशंस यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एक है और आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड एक्सेस है। So since I have this access, I can able to see IAM service, EC2 सर्विस, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर को तो पूरा एक्सेस होता है, होल अकाउंट का एक्सेस होता है उसके पास। सो मैं यूजर्स पे भी जा सकता हूँ, कोई नया यूजर बना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और एक सर्विस है EC2 सर्विस, है सर्वर्स के रिलेटेड सर्विस है ये। सो मैं ये सर्वर की जो सर्विस है EC2, तो उस पर ही हम लोग मतलब जाके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह कुछ नहीं है। So how this particular user can perform all those tasks, all those things, just because he has the permissions? यहाँ पे देखो आप, administrator access मैंने admin user को दिया है, that's the reason why he can able to do all those things. So what I will do now, I will just click on this administrator access and I will just remove it. I will just remove the policy of administrator user. Now see what effect he can get here, and this effect will be immediate effect, नॉट लाइक लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है, वैसे नहीं, ये इफेक्ट तुमको इमीडिएट दिखेगा। सो जस्ट आई विल स्विच टू द आई एम सर्विस, देखते हैं हमको क्या परमिशन है आई एम के अंदर। लुक, एक्सेस डिनाइड आ रहा है सब जगह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, यूजर्स का लिस्ट भी नहीं देख पाऊंगा, नथिंग। सो इफ आई गो टू द EC2 सर्विस का, अभी तक तो मेरे को कुछ एरर्स नहीं थे, बट नाउ आई विल गेट ऑल द एरर्स, देख रहे हो API एरर्स आ रहे हैं सब, परमिशंस डिनाइड के एरर्स हैं। So why these errors are coming? Because I don't have the permissions to perform these things. So AWS में permissions दोगे तभी काम होगा, ठीक है। So if I add the permission now, attach permission, कौन सी permission ऐड की थी हमने? Administrator access दिया था। नेक्स्ट करना है, add permissions करना है। अभी मैंने परमिशन ऐड की, जस्ट गो टू द यूजर, एडमिन यूजर, यहाँ पे सिर्फ आपको अभी IAM देखना है तो पहले IAM पे चले जाओ। नाउ सी यू कैन एबल टू एक्सेस IAM, देखो यहाँ पे कुछ एरर्स नहीं है अभी, प्रीवियस केस में एरर्स आ रहे थे एक्सेस डिनाइड के, अभी कुछ भी एरर्स नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। EC2 सर्विस देखना है तो EC2 में जाना है आपको। नाउ एवरीथिंग इज गुड, यहाँ पे कुछ भी API एरर्स नहीं आ रहे अभी, पहले जैसे आ रहे थे हमको। सो व्हाट डज इट मीन? द यूजर, if it has the permissions, then only he can able to do the work or do the necessary things that are provided by these permissions. अगर permissions नहीं दोगे तो वो यूजर को एक्सेस डिनाइड आएगा। ओके, नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हियर, व्हाट
व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस परमिशन। परमिशन होंगे तो काम कर पाएगा, वो नहीं देंगे तो निकल निकाल दोगे तो वो ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ अभी हमने लॉगिन जो किया था कौन से यूजर से, एडमिन यूजर से। जस्ट आई लॉग्ड आउट, मैं सिर्फ साइन आउट कर लेता हूँ अभी, फिर से लॉगिन करता हूँ। सो इट विल आस्क मी फॉर द अकाउंट एलियास। तो मैंने ये वाला अकाउंट एलियास है मेरा, और एडमिन इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज pass@123। मैंने pass@123 डाला है। सो नाउ ये जैसे मैंने डाला मेरा लॉगिन हो गया। इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कैन यू एबल टू लॉग इन गाइस। अगरचे अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा यूजर्स की कि ये आपको एलियास डालना है, ये यूजर नेम डालना है और ये पासवर्ड डालना है, कैन यू एबल टू लॉग इन इजीली। यस ऑफ कोर्स। अगर आपके पास क्रेडेंशियल है तो आप तो मतलब इजीली लॉग इन कर सकते हो। बट आई वांट दिस सेकंड ऑथेंटिकेशन और सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर। तो हमको क्या करना होता है, उस यूजर के लिए हमको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होता है। So what is multi-factor authentication? It is the additional layer of security for IAM user so that no one can access without his permissions. तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि ये यूजर का परमिशन नहीं हो। सो एडमिन यूजर है तो मैंने आपको क्रेडेंशियल दे दिया तो आप भी यूज कर सकते हो। सपोज आपने मेरे लैपटॉप में ये आपको एक्सेल मिला, सपोज ये आपको एक्सेल मिला और इसमें यूजर नेम पासवर्ड है, तो आप भी लॉग इन कर सकते हो। सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आपको MFA इनेबल करना होता है यूजर के लेवल पे। दैट इज MFA इज अ सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो दैट यू नीड टू एनेबल एट अ पर्टिकुलर यूजर लेवल। तो अभी मुझे एडमिन के लिए एनेबल करना है तो मैं क्या करूंगा, एडमिन यूजर पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, सेकंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेकंड नंबर का ऑप्शन है, दिख रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। MFA is additional layer of security to your account after username and password. So let's have a look here. So what is MFA? MFA. MFA is a multi-factor authentication. So this is second level of authentication after the username and password to AWS account. So this is most critical security feature that you need whenever there is a security audit so that your account is most secure. Okay, MFA चाहिए ही आपको। So MFA is a multi-factor authentication and it is a second level authentication after this। इसको और एक नाम होता है second factor authentication भी बोलते हैं हम लोग, second factor authentication। इस टाइप के authentication को second factor authentication भी नाम है। So there are different types of MFAs available. There are different types of MFAs available. So we have virtual MFA, virtual MFA. We have hardware MFA, hardware MFA. We also have uh, wait, हम लोग इस पे देखेंगे assign MFA device. This is the virtual. Let me grab the MFA in IAM. So this is the documentation, multi-factor authentication. So we have different types of MFAs. सो वर्चुअल ऑथेंटिकेटर ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे। एक ऑथेंटिकेटर ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसके थ्रू भी आप MFA इनेबल कर सकते हो। फिर एक हार्डवेयर MFA होता है। सो आपके पास एक डिवाइस होता है हार्डवेयर टाइप का, उस पे आप सिर्फ ये एक बटन होता है, इसको सिर्फ प्रेस करना होता है। ये प्रेस करते ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे डिजिट्स मिलते हैं। सो ये थोड़ा और सिक्योर होता है मोबाइल से, हार्डवेयर MFA। और तीसरा होता है UB2 की ऐसा कुछ है,
यूबी2 की, वेर इट इज, फीडो सिक्योरिटी की, इसको यूबी2 की भी बोलते हैं, यूबिको की। सो ये क्या होता है, एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे आपने AWS पे लॉग इन किया, पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है। जब तक आप वो लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना, कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक ये ऑथेंटिक नहीं करता है। तो आपको इस केस में क्या है कि नंबर है, तो आपको नंबर डाल के वहां से ऑथेंटिकेशन ले सकते हो। इस केस में भी क्या है, आप प्रेस करते हो इस डिवाइस पे, आपको एक नंबर मिलता है, वो आपको एंटर करना होता है। बट इस केस में नंबर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ये डिवाइस ही आपके पास चाहिए। अगर डिवाइस नहीं है तो आप लॉग इन भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सो फीडो सिक्योरिटी कीज है या फिर यूबिको कीज है, ये थर्ड टाइप का है। सो ये है फीडो की कीज होता है, वर्चुअल ऑथेंटिकेटर ऐप है, हार्डवेयर MFA भी बोल सकते हो। अगर आप अमेजोन पे वगैरह देखोगे, सो हार्डवेयर MFA के आपको इमेजेस भी दिखाता हूँ अभी। हार्डवेयर MFA इमेजेस, लुक, इस तरीके का डिवाइस होता है। ये देखो यूबीको की जो बोल रहा था ना मैं, इस टाइप का रहता है, पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है। इसको सिर्फ आपको कनेक्ट करना होता है, और ये जो बटन होता है इसको प्रेस करना होता है, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। तो लैपटॉप में आपको उसको प्लग इन करना पड़ता है। बट इस केस में कैसा है, देखो इसको इसने ये भी किया है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको प्रेस करना है, इसे नंबर मिलता है, 6 डिजिट नंबर। ये OTP जैसा काम करता है, कुछ टाइम तक ये वैलिड होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर MFA। हार्डवेयर होता है, और दूसरा होता है यूबी को, उसको, वो हार्डवेयर का ही एक टाइप है, बट इट इज़ मोर सिक्योर। उसमें तो आपको कनेक्शन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, यूबी को बोलते हैं उसको। सो दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ MFAs अवेलेबल। और वर्चुअल MFA तो आपको पता ही है कि लैप मोबाइल में आपको एक इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन। सो वर्चुअल MFA अभी बताता हूँ आपको। वर्चुअल MFA, there are so many virtual MFA applications. So the best one that I prefer is the Google, yes, Google Authenticator. So Google Authenticator. So it is one type of authenticator. तो आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करके लेना है, और ये होता है मोबाइल में आपको उसको डाउनलोड करके रखना है। सो ये जो है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं अभी इस पे शेयर कर दूंगा आपको, टेलीग्राम पे इमीडिएट शेयर करता हूँ, बाद में भूल जाने का चांस है। यस, दिस इज द MFA थिंग। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन रीड करना भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ भेज दिया हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट वेज दैट यू कैन क्रिएट अ MFA। सो क्या क्या था हमारे पास, वर्चुअल MFA, हार्डवेयर MFA, और यूबी को कीज, और फीडो कीज भी इसको नाम है, फीडो कीज। एम आई करेक्ट, फीडो कीज ही है ना, फीडो सिक्योरिटी कीज, फीडो सिक्योरिटी कीज। सो वर्चुअल MFA है, हार्डवेयर MFA है, और फीडो सिक्योरिटी कीज है। ये तीन टाइप के डिफरेंट MFA। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल यूज द वर्चुअल MFA ओनली। नो वन इज गोइंग टू यूज द हार्डवेयर एंड यूबिको कीज। बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। तो वर्चुअल MFA इज इनफ। ओके, सो ऑलवेज यूज बेस्ट प्रैक्टिस टू एनेबल MFA ऑन अ रूट डिवाइस, रूट यूजर। रूट यूजर पे तो मिनिमम होना ही चाहिए MFA। इफ यू गो टू द डैशबोर्ड, इफ यू गो टू द डैशबोर्ड, सो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐड MFA फॉर रूट यूजर। इट इज मैंडेटरी थिंग। ठीक है, तो ये करना ही है आपको रूट यूजर पे। और ऐड MFA फॉर यूर सेल्फ, तो खुद के लिए भी करना है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड MFA। तो अभी MFA कैसे होता है ना, करना है आपको, एक ऐप डाउनलोड करना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट एप्स फॉर द वर्चुअल MFA, आई विल, इफ यू गो हियर, सॉरी, इफ यू गो हियर, यूजर नेम, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, असाइन MFA डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे आप करते हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइस का नाम देना है। सपोज मैं देता हूँ कि एडमिन, नाम दिया, सिर्फ एडमिन यूजर के लिए MFA ही है। सो इसमें देखो आपको ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की मतलब कौन सा, फीडो सिक्योरिटी की, इसको यूबी की भी बोलते हैं हम लोग। सो ये सेकंड वाला लेना है। इस टाइप का डिवाइस आपके पास है तो ये ही सेलेक्ट करना है।
थर्ड वाला है हार्डवेयर एमएफए वाला, तो ये यूज करना है. So what we have authenticator app because we are not a company, we don't have this particular facility to purchase these devices. So हमारे पास ये Google Authenticator है, फिर Microsoft Authenticator, ये ऐप आप यूज कर सकते हो. हाँ. सो इसमें आपको फिर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सी अ लिस्ट ऑफ कंपेटेबल एप्लीकेशन दिख रहे हैं. अगर आपको पता भी नहीं है कि कौन सा एमएफए डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ सी लिस्ट करके क्लिक करना है. आपको यही पेज पे लेकर जाएगा जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की लिंक शेयर किया आपको. यहाँ पे आप आओगे वर्चुअल ऑथेंटिकेटर में, मोबाइल वाला, तो इसमें एंड्रॉयड के लिए इतने सारे एप्लीकेशन हैं यहाँ पे. हाँ. माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर. सो बेस्ट है कि गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक कर लो और इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से. सो इस टाइप का ऑथेंटिकेटर ऐप होता है. सो इस टाइप के इसमें कोड्स आते रहते हैं कंटिन्यूसली, थोड़े थोड़े टाइम बाद एक्सपायर्ड भी होते रहते हैं. सो दिस यू नीड टू एनेबल ऑन अ एडमिनिस्टर अकाउंट. एडमिन अकाउंट पे आपको रखना ही है इसको. तो अभी मैं एक को आपको करके बताता हूँ. बिकॉज आई हैव एन एप्लीकेशन इन माई पर्सन लाइक मोबाइल फ़ोन. मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप है, तो मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर ही है. तो जैसे आपने गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लिया, तो आपके पास देखो गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे अभी आप डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, दिख रहा है यहाँ पे नीचे प्लस साइन. ये आपके पास कुछ भी नहीं रहेंगे बिकॉज आपने कभी किया ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं रहेगा. सो जस्ट आपका ये ब्लैंक रहेगा और यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा. जस्ट यू नीड टू प्रेस दिस प्लस. जैसे आप प्रेस करते हो प्लस पे, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं. एक होता है स्कैन क्यूआर कोड. अगर अपने पास है तो देखते हैं. नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसे इमेज. सो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, स्कैन क्यूआर कोड और दूसरा होता है एंटर अ सेटअप की. तो उसमें से आपको क्या करना है, स्कैन करना है. देखो ना यहाँ पे शो क्यूआर कोड. आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, स्कैन क्यूआर कोड. अभी देखो यहाँ पे क्यूआर कोड आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना है. जैसे आप स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करते हो, तो आपके लैपटॉप पे ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसके ऊपर आपको उसको सिर्फ स्कैन करना है. जैसे आप स्कैन करते हो, तो आपके मोबाइल में वो जो ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसमें ये पर्टिकुलर डिवाइस ऐड हो जाता है. अभी जैसे ऐड होगा ना, टू कॉन्जिक्यूटिव नेम्स आपको, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको इसमें एंटर करने होते हैं. तो अभी मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ, 609459. ये मेरा पहला नंबर है. एमएफए कोड 1 है. हर 20 सेकंड्स में ये कोड क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है. तो एक कोड आपने डाला, तो उसके इमीडिएट दूसरा कोड जो भी होगा ना, तो वो आपको एंटर करना है. मेरे पास आ गया अभी 194 और 453. तो इमीडिएट कोड जो भी आएंगे ना, तो वो आपको डालने हैं. और वो एक्सपायर्ड होने से पहले आपको ऐड एमएफए करना है. जैसे आप ऐड एमएफए कर लेते हो, नाउ सी, now I have successfully added one virtual MFA device to my this particular admin user. So now how it works, let's see. लॉग आउट करना है अभी इससे, लॉग इन करना है. अभी मैंने आपको सबको मेरा पासवर्ड बताया था, तो कोई भी इसको ट्राई कर सकता है अभी लॉग इन करने का. तो बट ही इज़ नॉट एबल टू लॉग इन. वाई? बिकॉज आई हैव एनेबल्ड द MFA. अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया, एडमिन डाल दिया. अभी देखो pass@123, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया यहाँ पे. बट स्टिल इट इज आस्किंग फॉर द MFA कोड. जब तक मैं ये MFA कोड नहीं डालूंगा, तब तक ये क्या होगा, वैलिडेट नहीं होगा. सो अभी मैं कुछ डालता हूँ, कुछ नंबर. देखो, सबमिट करता हूँ, फेल्ड हो गया बिकॉज MFA इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट. तो अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, मेरा पासवर्ड डालता हूँ, pass@123, एंटर. अभी मैं करेक्ट MFA कोड एंटर करता हूँ, 410602. ओके, मेरा पासवर्ड ही गलत हो गया. वेट, pass@123. नाउ हर 20 सेकंड्स में रिफ्रेश होता है वो. 222767. नाउ आई एम एबल टू लॉग इन हियर. So without MFA, you are not able to log in even though you have username and password. So it is more secure login, correct? It is more secure login. तो जैसे ही आप ऐड करते हो इसमें ऑथेंटिकेटर में, तो आपको इस तरीके से ये कोड्स दिखना चालू होते हैं, 6 डिजिट कोड्स. और ये जो दिख रहा है ना, ये राइट साइड में, ये जो कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये एक्सपायर्ड होता है, नया कोड आता है, नया कोड आता है. तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोड आपको इसमें एंटर करने होते हैं while enabling the MFA. So it is very simple to enable the MFA here. So just go here to the IAM user and just enable the MFA. So I think today you will get the labs also here. So very nice labs. तो आपको रीसेट करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र डिलीट करने हैं,
ये सब, बट नेवर एवर ट्राई एनीथिंग ऑन अ रूट यूजर। देखो मैंने रूट यूजर पे कुछ करके नहीं बताया अभी तक आपको, ना कि मैंने रूट यूजर पे आपको MFA एनेबल करके बताया, ठीक है। सो नो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट फॉलो द मेथड व्हाट वी आई एम डूइंग, जस्ट रिप्लिकेट द सेम थिंग्स। अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा मत कर लेना अभी, है। अगर आपको नहीं पता है ना तो प्लीज मत करना, जस्ट फॉलो द मेथड दैट वी आर डूइंग हियर। सो MFA कर लिया हमने, ऐड किया। MFA के सिवा कोई लॉगिन नहीं कर सकता है। सो इफ आई डोंट वांट दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड रिमूव इट। तो क्या होगा, आपको MFA नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेंगे। सो लेट मी रिमूव इट, आई जस्ट रिमूव, just log out, again sign in. Now it will ask me for the credentials. Okay. Now this time it will not ask me for the MFA, directly login होगा अभी, second factor authentication नहीं होगा हमारे केस में अभी। Yes, so you can enable MFA, you can delete the MFA, you can remove the MFA, but if I user का अपने MFA बना लिया है यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, MFA अभी फिर से मैं असाइन कर लेता हूँ। सो नेम देता हूँ एडमिन, ऑथेंटिकेटर ऐप ही है मेरे पास। सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, I will just tell the show QR code here and I will scan the QR code. So I need to wait for 20 seconds again. So पहला MFA कोड है मेरा 254 and 974। नेक्स्ट है कोड, भी वेट करना पड़ेगा मुझे 10 सेकंड और। सो नेक्स्ट MFA कोड इज 127555। ऐड MFA, अभी मैंने MFA ऐड कर लिया। यस, सो when I again log in, then it will ask me for the MFA। प्रीवियस केस में नहीं हुआ था, प्रीवियस टाइम हमने जब लॉग इन किया तब इसने नहीं पूछा था, बट इस टाइम वो पूछेगा मुझे, राइट। सो एडमिन यूजर है और पासवर्ड है pass@123, बट दिस टाइम इट इज आस्किंग मी फॉर द MFA कोड। सो व्हाट आई विल डू, 127555 जो मेरा एक्सपायर्ड हो गया ना वो कोड ही मैं डाल रहा हूँ अभी, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। हाँ, इट हैज़ वर्क। कुछ डिले हो गया था तो इसमें ले लिया इसको, बट नहीं तो नहीं लेता है, एक्सपायर्ड कोड भी नहीं लेता है। सिंस वी आर समवॉट फास्ट तो ये इसने ले लिया। सो अभी फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं यहाँ पे, @123, यहाँ पे कुछ भी कोड डाल देता हूँ मैं अभी, सबमिट इट। नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग। तो कभी कभार ऐसे होता है, तो इसको भी कैसे हम लोग मैनेज करते हैं तो वो देखेंगे। MFA तो किया है आपने, बट MFA काम नहीं कर रहा है फिर, या आपका मोबाइल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मोबाइल आपके पास है नहीं। सो देन हाउ यू कैन लाइक वर्क विथ दिस, for every 20 second MFA codes is generating, yes, correct. So shall we stop at this point, guys? Today's session is mostly practical and mostly oriented with the user management thing. So please go through the today's session, and before coming to tomorrow's session, please revise all those things and try all the possibilities. Okay. Yes. Thank you. Thank you, guys. Thank you for attending this session. We'll continue tomorrow, same time.